So, इसलिए you know, in Old Testament also it was like this. और पुरानी नियम में भी ऐसा ही होता था। When Abraham was 75 years old, जब अब्राहम 75 साल का था God said, you're going to have a son और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, through Sarah. सारा से कहो। He didn't say that in the beginning. और आरंभ में ऐसा नहीं कहा You're going to have many children. कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे। And he waited 10 years, और 10 साल तक इंतजार करता रहा। 85 years old. 85 वर्ष Sarah has no children. और सारा का कोई भी बच्चा नहीं हुआ। Her womb is barren. उसकी जो कोख थी वो बिल्कुल जन्म नहीं दे रही थी। So he said, okay, instead of Sarah, let me have children through my maid servant Hagar. तो उसने सोचा कि चलो सारा के बजाय हागार के द्वारा बच्चे हो। Sarah said, okay. सारा ने कहा ठीक है। So what was Abraham trying to do? तो अब्राहम क्या कर रहा था? See, God has made a promise, परमेश्वर ने वायदा किया है and God's name should not be spoiled. तो परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। So let me help God by trying to have a son. तो मुझे परमेश्वर की मदद करना चाहिए बच्चे पैदा Because करके। God cannot do it through Sarah. Let me help God by getting another woman and we can have a son. परमेश्वर सारा के द्वारा बच्चा नहीं पैदा कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए हागार के द्वारा बच्चे He पैदा got करता हूं। Ishmael. He got Ishmael. और उसको इश्माइल पैदा हुआ। God said, send Ishmael away. You're never going to see him again. परमेश्वर ने कहा कि इश्माइल को यहाँ से दूर हटा दो, That's not my वो मेरा promise. नहीं। See, Abraham could still have a son when he was 86. और 86 का था तब वो पैदा कर सकता था बच्चे, He had a son. उसका खुद का बच्चा था। But by the time he became 99, जब वो 99 वर्ष का हुआ he was not able to have a son. He had become impotent. वो उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता था। We read in Romans 4, even his own body was dead. वो कहते हैं कि रोमियो में लिखा है कि उसका शरीर भी मर चुका था। Sarah's womb was already dead for a long time. सारा की जो कोख है वो तो पहले से मरी हुई है 99, Abraham's body was also dead. और 99 में अब्राहम का शरीर भी मर चुका है। God said, now you're ready to have a son. तो परमेश्वर कहता है कि अब तुम तैयार हो, And he got Isaac. और उसका आइजक हुआ। What is the lesson? इसका शिक्षा क्या है? Same thing that all these disciples had to learn. और यही चीजें ये चेलों को भी सीखना चाहिए। There are 3 stages in God doing a miracle through us. और हमारे द्वारा परमेश्वर को कोई कार्य करना है तो उसके 3 ऐसे कदम हैं, To give us his promise. और अपने वायदे को देने के For लिए। Abraham, the promise was you'll have a son. अब्राहम को वायदा किया कि तेरा एक पुत्र For होगा, us, the promise is sin will not rule over you. और हमारे लिए है कि जो पाप है वो हम पर प्रभुता नहीं करेगा। How was it fulfilled with Abraham? अब्राहम के द्वारा पूरा कैसे हुआ? First, at the age of 86, difficult. और 86 वर्ष में मुश्किल है, Then, impossible. और बिल्कुल असंभव। At the age of 100, done. लेकिन 100 वर्ष का हुआ तो हो गया। So there are 3 stages. 3 ऐसे कदम, Difficult, पहले मुश्किल, impossible, बिल्कुल असंभव, then it's done. फिर हो गया। Lazarus, लाजर, difficult to be healed. और चंगाई पाना मुश्किल, When he's dead, impossible. जब वो मर गया तो असंभव, Done. He was raised. लेकिन तीसरे कदम में वो जिंदा हो गया। The disciples who went fishing, जो मछली पकड़ रहे थे मछुआरे, उसके चेले, by midnight, difficult. जब आधी रात हुआ तो मुश्किल, By 5 o'clock in the morning, impossible. और 5 बजे बिल्कुल असंभव, Done. और उसके बाद हो गया। How are you going to experience the promise? Romans 6:14, sin will not rule over you. और आप किस प्रकार से इसको अपने जीवन में, जो कि लिखा है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा You करके try and try, difficult. आपने कोशिश किया, मुश्किल है। One day will come in your life when you say, it is impossible. एक दिन आपके जीवन में आएगा जब आप कहेंगे कि ये असंभव है। I can never get victory over my dirty thoughts. I can never get victory over my anger. और मैं कभी भी अपने गुस्से के ऊपर जय नहीं पा सकता और गलत विचारों के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता। But now I will trust in the Lord. लेकिन अब मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, It will be done. तब होगा। So you say, Brother Zach, why it's not working in my case? तो आप बोलेंगे कि भाई जैक, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? You're still in the difficult stage. क्योंकि अभी भी आप जो है मुश्किलात के हालात में You हैं। haven't come to the place where you think it's impossible. You're still trying. अभी You तक आप उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां पे असंभव है। The wine has not come down to 0 yet. अभी तक दाखरस जो है शून्य में नहीं हुआ। Let God break you. परमेश्वर जो है आपको तोड़ने दो। Let God break your pride and your confidence in your own ability. और आपकी काबिलियत को बिल्कुल जो परमेश्वर तोड़ने दो।
get down before God and say, Lord, I give up. और परमेश्वर के सामने आकर बोले कि परमेश्वर मैं आप सब छोड़ता हूँ You do it in me. और तू मुझ में कर You keep me from falling. और तू मुझे संभाल गिरने I से। have tried, I have tried, I have tried, and I am always falling. और मैंने बहुत कोशिश किया, बार बार कोशिश किया, लेकिन मैं बार बार गिरता हूँ। Now teach me how to allow you to keep me from falling. अब तू मुझे सिखा कि किस प्रकार से मैं संभालूं या गिरूं नहीं। And the Lord says, are you willing to die to yourself? तो परमेश्वर पूछता है कि क्या तुम तैयार हो अपने आप में मरने के लिए? Not just in this one area where you're defeated, केवल एक ही क्षेत्र में नहीं जहां पे तुम पराजित हो, in every area. लेकिन हर एक क्षेत्र में। Lord, I want to die to myself. I never want to do my own will. in my परमेश्वर life. मैं अपने हर एक क्षेत्र में मरना चाहता हूं और मैं अपनी इच्छा नहीं करूंगा, I want to do your will. मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूं। I tell you, this has become true in my life. I went through this stage, difficult, impossible, done. मैं बताना चाहता हूं मैं खुद इन क्षेत्रों से गुजरा And I've met people like this. और मैं खुश होता हूं ऐसे And I लोगों को believe it will देखकर। happen for you. It will happen for you और as मैं जानता well. हूं कि ये आपके जीवन में भी होगा। Is there any promise in the Bible that cannot be fulfilled? क्या ऐसा कोई वायदा है जो जीवन में पूरा नहीं हो Is सकता? God a liar? क्या परमेश्वर झूठा है? No. नहीं। Why is it not happening in your case? लेकिन आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? Like Abraham, you're trying and trying and trying. अब्राहम की तरह आप कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। One day Abraham's ability died. एक दिन जो अब्राहम है उसकी काबिलियत मर चुकी, Then he got Isaac. फिर उसको आइजक मिला। And one day when you're willing to completely die to your name and your reputation and your will, it'll happen with you also. जब आप अपने नाम के निमित्त आपके जो रेपुटेशन है, जान पहचान है, सम्मान है, उसके प्रति आप मर जाएंगे। There was a preacher in America many years ago, 100 years ago. 100 साल पहले एक प्रचारक थे अमेरिका में। It's a true story. ये एक सच्ची घटना है। He heard about the baptism in the Holy Spirit. उसने सुना बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, And he wanted to be filled with the Holy Spirit. और वो चाहता था कि पवित्र आत्मा And से भरे। he prayed and he surrendered everything. Lord, fill me with the Holy Spirit. Nothing happened. और उसने प्रार्थना किया, समर्पण किया कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु जी। He said, Lord, I've surrendered everything. लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि परमेश्वर मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया। And as he waited on the Lord, जब वो परमेश्वर की बाट जोड़ने लगा, इंतजार करने लगा, the Lord said to him, तो परमेश्वर ने उससे कहा, you want the baptism of the Holy Spirit to become a great preacher like that other person you saw. और तुम जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हो क्योंकि तुम उस प्रचारक के समान महान बनना, बड़ा प्रचारक बनना चाहते हो। He had heard D.L. Moody and all preach about baptism in the Holy Spirit. जैसे डी.एल. मूडी वगैरह प्रचार करते हैं बपतिस्मा। You want to be a preacher like him. That's why you want baptism of the Holy Spirit. और तुम इसलिए बपतिस्मा चाहते हो पवित्र आत्मा का क्योंकि तुम भी उसके समान प्रचारक बनना चाहते हो। And he discovered that was the reason. और उसने ये खोज कर लिया, हाँ यही कारण था। He was a pastor in a church and he wanted to be preacher like D.L. Moody. वो एक कलीसिया का पासवान था और डी.एल. मूडी के समान वो भी प्रचारक बनना चाहता He था। said, Lord, I don't want it. तो उसने कहा कि प्रभु मैं नहीं चाहता वैसा बनना, Just fill me with the Holy Spirit. केवल तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। And God filled him with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। And God told him to leave his church और परमेश्वर ने कहा कि इस कलीसिया को छोड़कर जा, and go to England इंग्लैंड में जा and join the Salvation Army under William Booth. और विलियम बूथ के अधीन में होकर सैल्वेशन आर्मी जुड़ जा। See, those days Salvation Army was a very powerful movement, not like today. और आज के तरह नहीं था, उस जमाने में बहुत बड़ी एक क्रांति आ रही थी उसमें। So he went to join William Booth's Salvation Army. तो विलियम बूथ के सैल्वेशन आर्मी में जुड़ने गया। So he thought William Booth will make him a preacher. तो उसने सोचा कि विलियम बूथ जो है उसको एक प्रचारक बनाएगा। He said, Booth was a very wise man. और बूथ जो है बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति था। He said, for the next 1 year, your job is to polish all the shoes of all these preachers here. और अगले 1 साल के लिए तुम्हारा यहाँ पे जितने प्रचारक हैं उनका जूता पॉलिश करने का काम है। Go down to the basement and polish all their shoes. बेसमेंट में जाके जितने जूते पड़े हैं उनको पॉलिश कर दो। This great famous pastor went down and did that. और बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक गया और वैसा करने लगा। He said, fine. He had told the Lord, I don't want to be a great preacher. I want to be filled with the Holy Spirit. और उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे बहुत बड़ा एक प्रचारक नहीं बनना। So I'll polish the shoes better than anybody else because I'm filled with the Holy Spirit now. और उसने कहा कि मैं जूते पॉलिश करूंगा, केवल तू अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। And he became one of the greatest preachers in the Salvation Army afterwards. और उसके बाद वो सैल्वेशन आर्मी का सबसे बड़ा एक प्रचारक बना। God tests us to see whether we are willing to go down to the bottom. परमेश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि क्या हम नीचे स्तर में उतरने के लिए तैयार हैं या नहीं। Then he will exalt you. फिर वो हमें ऊंचा उठाएगा।
God bless you all, my brothers and sisters. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई और बहन। Thank you for listening to me patiently for 8 or 9 hours in these 2 days. और ये 2 दिन में 8 से 9 घंटे धीरज के साथ मेरे सुनने के लिए धन्यवाद। Been a tremendous joy to speak to you. और जो बहुत बड़ी आशीष आनंद है वो आपसे बात करने Let's दे। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that those who are hungering and thirsting here will be filled with the Holy Spirit. पिता परमेश्वर यहाँ पे जो भूख के साथ प्यास के साथ हैं वो जो है आत्मा से भर जाएं। Their heart's longing will be satisfied उनके जो हृदय की इच्छा है वो पूरा हो जाए, तृप्त हो जाए। and their lives will be changed. उनका जीवन पूर्ण तौर से And रूपांतरित हो जाए they'll be a blessing to others. और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण We बने। pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।